السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قیامت کے قریب پیش آنے والے معاملات جو اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائے اور اس کے حبیب نے اپنی احادیث میں بیان کیے، ان میں سے اکثر علامات اب ظاہر ہونے لگ گئی ہیں۔ میں بڑی علامتوں کا آج ذکر کرتا ہوں۔ جنگیں بہت زیادہ ہونے لگ جائیں گی، مسلمانوں کا قتل عام بڑھ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قتل بڑھ جائے گا، جس کو حرج کہا گیا حدیث پاک میں، اور کثرت سے جنگیں ہونے لگیں گی، ہر جگہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور کفار و مشرکین غالب آنے لگیں گے۔ یہ وہی حالات ہیں جس کی طرف ہم ہانکے جا رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ آج میں نے جب یہ دیکھا، اندور شہر کے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے تیسری یا چوتھی جماعت میں جانے والے 4 لڑکے مل کر کسی مندر کے پاس جاتے ہیں، اس میں ایک مسلمان لڑکا، باقی 3 ہندو ہیں۔ مسلمان لڑکے کو انہوں نے کپڑے کھول کر کے پیٹنا شروع کیا، مارنے لگے۔ چھوٹی سی عمر کے بچے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھگوان کا نام لینا شروع کرتے ہیں۔ یہ چیز جو عام طور پر ہو رہی ہے بچوں میں منتقل ہو گئی، یہ زہر۔ پھر اس کے بعد معاملات بڑھے، ان تینوں کو بھی اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، لیکن یہ زہر آ کیسے رہا چھوٹے بچوں کے دماغ میں۔ اسی طرح سے دلی کا ایک واقعہ، چھوٹی سی 10 سال کی ایک لڑکی بچی ہے، اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے، دوسرے ہی دن اس کو دوسری نان مسلم لڑکیوں نے تانا مارنا شروع کیا کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ وہ بھولی بھالی بچی اپنی ماں سے آ کر کے پوچھنے لگی کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونے پر لوگ اس طرح سے گالیاں دے رہی ہیں اسکول میں۔ انہوں نے انتظامیہ سے شکایت کی، پھر معاملہ آگے بڑھا، وہاں پر بھی کارروائی جو نام پر ہونی تھی ہوئی۔ لیکن میں یہ مثالیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ زہر اتنا بڑھ چکا، اب نیتاؤں میں نہیں، اب بڑے پہلوانوں میں نہیں، اب بچوں میں بھی یہ زہر آ گیا، اور یہی حالات روزانہ آپ کو دیکھنے ہیں۔ ابھی اس کے لیے آپ اپنے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ منافقت مت کرنا۔ قیامت کے قریب ہم آزمائش کے دور میں آ چکے ہیں۔ جب بچوں میں یہ زہر بھر دیا گیا ہے تو اب یہ بچے جب جوان ہوں گے تو یہ اور زیادہ زہریلے ہو جائیں گے۔ وہ چہرہ بھی ہمارا دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے بنانے میں بہت ساری چیزیں ذریعہ ہیں، فلمیں بھی ہیں، سیریلز بھی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، نیتاؤں کے بھاشن بھی ہیں، اور کٹر سادھوؤں کے پرووک کرنے کے طریقے بھی، یہ سب چیزیں مل کر کے بچوں کے دماغ کو زہریلا بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ صرف اور صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا چند سالوں قبل نیوزی لینڈ میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور لائیو اسٹریم کرتے ہوئے نمازیوں کو گولی مارتا گیا۔ تقریباً 50 لوگ اس کی گولی سے مر گئے تھے مسجد میں، اور اس کی
شوٹ کرنے کا اس نے لائیو سٹریم بھی چالو رکھا ہے. وہ لائیو دکھاتا بھی رہا اور شوٹ کرتا رہا. ایک آدمی کا اس طرح کسی مسجد میں گھس کر کے 50 کے قریب نمازیوں کو مار ڈالنا، یہ کون سی مانسکتا تھی؟ یہ کون سا ذہن تھا؟ وہ بھی اریسٹ ہوا اور اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں تھا، اسی لیے کہ برسوں وہ اس آگ میں جل رہا تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تمہارے متعلق یہ زہر جو پھیلایا جا رہا ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ ہونا ہے. اب میں آپ کو جو چیز عرض کر رہا ہوں اس کے انتظار میں ہم رہتے ہیں. اللہ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ جنگیں جب بڑھ جائیں گی، ہر جگہ مغلوب ہونے لگ جائیں گے، ظلم اتنا ہو جائے گا کہ تمہاری گردنوں پر کرسیاں رکھی جائیں گی. آج بھی دیکھیں جو حالات ابھی ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اور اس پر کسی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تم ناانصافی کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. اتر پردیش میں 144 ہے. پورے صوبے پر، پورے اسٹیٹ میں کرفیو نافذ ہے کہ کوئی ٹپنی بھی نہ کرے. سب کے سوشل میڈیا سائٹس کو پر سائبر پولیس کی نظر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن میں یہ کہتا ہوں سب کر لو، لیکن جو حق بات ہے وہ ہم آخری سانس تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. ڈر کے چھپ کے مصلحتوں کے چکر میں کب تک جینا ہے اس دنیا میں؟ موت تو آنی ہے نا ایک دن، موت تو آنی ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی اس حقانیت کو بڑھ چڑھ کر اعلان کر کے مریں؟ جب جنگیں زیادہ ہو جائیں گی اور ہر جگہ سے ظلم بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ عرب میں بھی کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں ہوگی. یہ حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ تو ابھی نظر آ رہی ہے کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں، وہ کٹ پتلی ہے. کبھی اس کو امریکہ ہانکتا ہے، کبھی رشیا ہانکتا ہے، کبھی چائنا ہانکتا ہے. تو یہ عرب میں کوئی اسٹرانگ حکومت، مضبوط حکومت نہیں ہوگی. اور مسلمان جب زیادہ قتل ہونے لگیں گے تو سب اکثر ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں گے. جو بچے ہوئے ہوں گے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے. اب مدینہ طیبہ میں مسلمان رہ رہے ہوں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الایمان لا یأذر الى المدینہ کما تأذر الحیۃ الى جحرها. ایمان جو ہے مدینے سے نکلا ہے اور گھوم پھر کر کے پوری دنیا سے ایمان واپس مدینے میں ویسے ہی آ جائے گا جیسے سانپ اپنی سوراخ میں واپس آتا ہے. ایمان والے سب مدینے پہنچ جائیں گے. اب وہاں جانے کے بعد لوگوں میں یہ بات کثرت سے پھیل جائے گی کہ اب ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت مجبور ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو اس وقت جو مدینے میں تھے علماء، صلحاء، سب بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا ہوگا. اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں ہوں گے. امام مہدی جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں عطا فرمایا، ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا. ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر ہوگا. اور اللہ کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے اس روئے زمین کے وہ آخری خلیفہ راشد ہوں گے. مدینہ طیبہ میں وہ ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے ہوں گے. اب لوگ جب انہیں تلاش کرنے ہوں گے، اس دوران کئی جھوٹے مہدی بھی تیار ہوں گے، کیونکہ امام مہدی کا چیپٹر سب نے پڑھا ہے. جھوٹے مہدی دعویٰ کریں گے لیکن مار کھائیں گے، مریں گے، جیلوں میں جائیں گے. یہ جھوٹے مہدیوں کا یہی ہوتا رہے گا. امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کر حاکم نہ بنا لیں، امام نہ بنا لیں. اب لوگ جب تلاش زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر امام مہدی کو کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پہچاننے لگتے ہیں.
تو इमाम मेहदी मदीना छोड़कर मक्का आ जाते, मक्का हिजरत करके आ जाते। अपने आप को छुपा करके रह रहे थे मक्का मुकर्रमा में। यही रमज़ान का मौका, वो खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद के करीब लोग। अच्छा ये भी मैं बता दूं, जितने दुनिया में अब्दाल, अख्ताब, औलिया होंगे वो सब हिजरत करके उस वक्त मक्का में पहुंचे होंगे। मक्का में सारे औलिया होंगे उस वक्त, और तवाफ के दौरान सब लोग पहचान लेंगे इमाम मेहदी को और उनको पकड़ लेंगे और उनका हाथ पकड़कर सारे लोग कहेंगे अब हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, आप इमाम बरहक हैं और आप हमारे हाकिम हो जाएं। इमाम मेहदी मना कर रहे होते हैं, उसी वक्त आसमान से एक आवाज आती है। उस आवाज में खास ये कहा जाता है हादा खलीफतुल्लाहिल मेहदी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है। इस आवाज को सुनकर सब टूट पड़ते हैं। इमाम मेहदी सबको बैत करते हैं, फिर वापस यही काफिला लेकर मदीने पहुंचते हैं रोज़े रसूल पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचते हैं तो अहले मदीना भी उनके हाथ पर बैत करते हैं और एक पूरी फौज तैयार होती है। ये इनकलाब का दौर है। जितनी जंगें इन कुत्तों ने की थी, जितना ज़ुल्म रचाया था पूरी दुनिया में, अब रिवर्स होने का टाइम आ जाता है। हज़रत इमाम मेहदी उस फौज को लेकर मुल्क शाम की तरफ जाते हैं। हालात मुल्क शाम के ऐसे हो चुके होंगे कि मुल्क शाम में ईसाइयों की हुकूमत कायम हो चुकी हो। अभी तो नहीं है, या इनडायरेक्ट उनसे किसी का ताल्लुक है तो ये हमें पता नहीं, लेकिन हदीस में ये है कि ईसाइयों की हुकूमत मुल्क शाम में कायम होगी और यहूदी फितना मचा रहे होंगे हर जगह। कत्ले आम जो मुसलमानों का सबसे ज़्यादा करने की कोशिश है वो यहूदियों की तरफ से। इमाम मेहदी मक्का मुकर्रमा से निकलकर मुल्क शाम की तरफ जाएंगे और मुसलमानों की जो किल्लत थी, जो छोटी सी जमात थी, ये जब निकल करके वहाँ आएगी मुल्क शाम, बहुत बड़ी जंग होगी जिसको मलहमतुल कुबरा कहा गया है। इमाम मेहदी की क़यादत में ये जंग होगी। सारे कुफार, ईसाई, यहूदी सब मुकाबिल में आ जाएंगे। उनकी तादाद जो हदीस में बताई गई है वो 80 झंडों के नीचे आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 लोग होंगे। और ये मुसलमानों की नहीं है, ये कुफार और मुशरिकीन की। तकरीबन ये 9,60,000 की तादाद बनती है कुफार और मुशरिकीन की। 9,60,000। मुसलमानों की तादाद कितनी होगी ये तो नहीं पता। उसके बाद जंग जब शुरू होती है, पहले दिन मुसलमानों का 1/3 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जाता है। जो कमज़ोर दिल थे वो चले जाएं, और उनके मुतालिक कहा गया है कि ये ऐसे लोग होंगे जिनकी तौबा कभी ना कबूल होगी और वो ये ज़मीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे। वो सबसे बदतरीन लोग होंगे जो मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे। 1/3। दूसरे दिन 1/3 शहीद हो जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे। तीसरे दिन अल्लाह ताला इस मोमिनीन की कलील जमात को फतह मुबीन अता फरमाए, और उसके बाद मुल्क शाम के सारे इंतजामात इमाम मेहदी के हाथ में होंगे। दिमश्क जब वो आएंगे, दिमश्क की जामा मस्जिद से इमाम मेहदी अपने इंतजामात और इंसरामात को संभालेंगे। फिर वहाँ से इमाम मेहदी उसी फौज को लेकर कुस्तुनतुनिया जो मौजूदा इस्तांबुल है उसको फतह करने के लिए निकलेंगे। उस वक्त वो भी ईसाइयों के हाथ में होगा। अब जब इमाम मेहदी यहाँ आएंगे, सिर्फ एक ही दिन में कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फतह होगा, और उसकी भी कैफियत बताई गई है, मुसलमानों के सिर्फ नारे तकबीर से फतह होगा। सिर्फ इसलिए कि ऐसी हैबत तारी होगी उन कुफार और मुशरिकीन के दिलों में। पूरा शहर फतह होगा। इमाम मेहदी ये शहर फतह करके वापस मुल्क शाम आएंगे, दिमश्क में आएंगे। अब ये वो वक्त होगा जब इमाम मेहदी मस्जिद से
इंतजामात और इंतजामात संभाल रहे हैं, और कसीर जंगें उस वक्त भी होंगी, लेकिन हर जंग में अल्लाह ताला इमाम मेहदी को फतह अता फरमाएगा, हर जंग में। और यहूदी दसीसाकारी कर रहे होंगे, इमाम मेहदी को ख़त्म करने, कत्ल करने की बहुत कोशिशें कर रहे होंगे। फिर इमाम मेहदी इन यहूदियों से लड़ते रहेंगे। उस वक्त अल्लाह की बारगाह में इमाम मेहदी भी दुआ करते हैं कि मौला इन जालिमों से हमें नजात अता फरमा। और यहूदी भी जगह जगह इस बात से परेशान होंगे कि इमाम मेहदी ने इनका बेड़ा गर्क कर रखा है, जहाँ जाते मुकाबिल में ये शिकस्त खाते हैं, मर जाते हैं, और इनके मुकाबिल में कोई आ नहीं पा रहा है। तो फिर ईरान के एक इलाके में ये यहूदी कसरत से दुआ में मशगूल होंगे। ये वो ज़माना होगा जब इराक और शाम के बीच में दज्जाल ज़ाहिर होगा। दज्जाल, जिसके मुतालिक हदीस पाक में तफसीलन बहुत सारी बातें आई हैं। दज्जाल आएगा, वो एक आँख से काना होगा, आंखें दोनों होंगी, एक आँख उसकी नज़र आएगी, और उसकी आंख के किनारे काफिर लिखा हुआ होगा, जिसको मुसलमान देखकर पहचान लेंगे। और वो बड़ा भारी भरकम ताकतवर होगा, और अल्लाह ताला उसको बहुत सारे खारिक़ आदात चीज़ें अता करेगा। वो ज़ाहिर होगा और सबसे पहले यहूदियों में आकर के ही बैत ले लेगा, यानी अपने आप को पहले रसूल बनाएगा, और फिर सारे यहूदी। हदीस पाक में तो है कि अस्फहान, ईरान के 50,000 यहूदी उसकी फौज में शामिल होंगे। हाँ, जिसको ये मसीहा कहते हैं, और उसके इंतज़ार में बलियां चढ़ा रहे हैं। यह ज़ाहिर होगा इराक और शाम के बीच में है, और फिर ये सब यहूदी दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। दज्जाल ऐसे निकलेगा रूए ज़मीन पर, हदीस पाक में ये सब मिलता है कि वो आसमान से रहेगा तो आसमान से बारिश बरस जाएगी, ज़मीन से सब्ज़ा निकलने लगेगा, किसी को मार के दोबारा जिंदा करके दिखाएगा। ये सब चीज़ें वो करके दिखाएगा। यहाँ तक कि चलते चलते ज़मीन से कहेगा तेरे अंदर जितने ख़जाने हैं निकाल, ज़मीन पूरे ख़जाने बाहर करेगी। और जब वो आगे चलता रहेगा तो ये ख़जाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे झुंड की तरह चलते होंगे ख़जाने। और दुनिया के लालची लोगों को एक सिक्का ही चाहिए बस, जिसके पास माल है उसके पीछे गुलामी। बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ी आजमाइश होगी, लेकिन जो ईमान वाले हैं, हदीस में है, उस दिन भी वो नहीं बहकेंगे, उस दिन भी वो नहीं बहकेंगे। वो गजब का ईमान होगा उन लोगों का। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से मुकाबला करने वाले जो मोमिन होंगे ना, उसका फितना देख करके भी ईमान पर कायम होंगे, उनके लिए हुजूर ने फरमाया वो बगैर हिसाब के ही जन्नत में जाएंगे। उनका हिसाब नहीं होगा, वो बिना हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो दज्जाल रूए ज़मीन पर घूम रहा होगा और फितना मचा चुका होगा। पहले तो रसूल कहता रहा, उसके बाद फिर खुदाई का दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ। उसकी खुदाई को मानने वाले वो यहूदी भी होंगे, ईसाई भी होंगे, बहुत सारे मुसलमानों में भी गुमराह हो चुके होंगे। जिनका पहले से ईमान मजबूत नहीं था वो उसके पीछे चल पड़ेंगे। वो हजारों की तादाद में लोगों को काफिर बना चुका होगा। मेरे अजीजों, दज्जाल तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहा है, आसमान से बारिश बरसा करके, ज़मीन से सब्जा उगा करके, और उस वक्त कई लोग गुमराह हो जाते हैं। यहाँ तो छोटी मोटे बाबाओं के पीछे ही गुमराह होते हैं। आज तो चिट्ठी निकाल कर दिखा रहा है बाबा, तो भीड़ लग चुकी है कि तुम क्या खाए हो, क्या पिए हो, क्या सोच रहे हो, चिट्ठी में मैं निकाल करके दिखाऊंगा। चिट्ठी वाले बाबा के पीछे ही हजारों चले जाते हैं, तो दज्जाल वाले बाबा के पीछे कितने जाते। लेकिन हदीस पाक की रोशनी में मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने फरमाया, कौन लोग उस दिन महफूज रहेंगे, कौन लोग उस दिन महफूज रहेंगे। दज्जाल की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन वो जो चीज़ें खारिक़ आदात दिखा रहा होगा, लोग अचंभे से देख रहे होंगे। अच्छा, एक बात और भी बता दूं, आप घर में बैठे हों, कोई मस्जिद में होंगे, शोर आएगा कि वहाँ पर खुदा उतर पड़ा है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और अजीब व गरीब चीज़ें दिखा रहा है। आसमान को कह रहा है तो आसमान बारिश बरसा रहा है, ज़मीन को कह रहा है तो ज़मीन खजाने निकाल रही है। कुछ लोग जो घर में बैठे होंगे, तवज्जो, ये बहुत अहम बात कह रहा हूँ, कहीं महफिल में होंगे, मस्जिद में होंगे, जब ये शोर आएगा
तो कुछ कहेंगे कि चलो हम भी जाकर देख के आते हैं, तो कुछ लोग ये कह करके उठेंगे और जाकर काफिर हो जाएंगे, और कुछ लोग वो होंगे जो जैसे सुनेंगे अपने आप को घर में ऐसे मजबूत बंद कर लेंगे कि उनको हवा आने की भी ख्वाहिश न रहे, इस तरह अपने आप को महफूज कर लेंगे। और बुजुर्गों ने लिखा है कि उस वक्त उसके फितने उरूज पर होंगे, लोगों में सिर्फ और सिर्फ चर्चा यही होगा। इसीलिए मैं अक्सर ये मीडिया को दज्जाली मीडिया कहता हूँ। उसकी वजह यही है कि दज्जाल के आधे से ज्यादा काम ये मीडिया वाले करते हैं, सब जगह फैलाएंगे अफवाहें और झूठ को सच करके दिखाते रहे, सच को झूठ करके दिखाते रहे। ये मीडिया यही सब काम करती रहेगी। उस वक्त कौन लोग महफूज रहेंगे? बुजुर्गों ने लिखा है दज्जाल के करीब भी जाएगा कोई बंदा, लेकिन उसको देखकर नहीं गुमराह होगा, तो ये कौन होगा? जिसका सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा होगा। ये वही होगा जिसके लिए आला हजरत ने फरमाया ना, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। हुजूर के कदमों में जो पड़े हैं वो गैर का मुंह क्या देखे। कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। अब ये दज्जाल घूमता हुआ जब फितना बहुत बर्पा कर चुका होगा, मक्का जाएगा, पहले ये यमन जाएगा, यमन में भी बहुत फितना फैलाएगा, उसके बाद फिर मक्का आएगा। मक्का की सरहदों को अल्लाह ताला फरिश्तों से महफूज कर रखा होगा, फरिश्ते उसे दाखिल होने नहीं देंगे, मारेंगे और दाखिल नहीं हो सकेगा। फिर मदीना जाएगा, मदीने तैयबा अपनी पूरी फौज लेकर के दाखिल होने की, 2 शहरों के अलावा पूरी दुनिया के हर शहर घूमेगा, हर शहर घूम चुका होगा 2 शहरों के अलावा, मक्का मुकर्रमा, मदीने तैयबा। मदीने तैयबा के सरहद पर आएगा, वहां पर भी अल्लाह के फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे, मेरे मुस्तफ़ा का शहर है, दज्जाल नहीं आ सकता। लेकिन उसका शोहरा जब मदीने के बाहर बहुत फैल चुका होगा, मकाम जुर्फ एक जगह है, वहां तक वो पहुंच चुका होगा, जहां आज बादशाह ने एक पैलेस बनाया हुआ है। इन लोगों ने एक पैलेस बनाकर रखा है वादी जुर्फ में, वहां तक पहुंचेगा तो मदीने तैयबा के एक आलिम वो जाएंगे, उससे मुनाजरा करेंगे, डिबेट करेंगे। सिर्फ मुनाजरे के करने की वजह से उस आलिम दीन को वो कत्ल कर देगा, कत्ल करके उसके बाद फिर उनको दोबारा जिंदा करेगा, और उसके बाद कहेगा कि देखा मेरी ताकत। उस आलिम दीन का कहना होगा अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने पर और ज्यादा यकीन हो गया, इसलिए कि मैंने मेरे मुस्तफ़ा से सुना है वो मार करके दोबारा जिंदा करेगा। और उस आलिम का दूसरा चैलेंज ये होगा कि मैंने अपने हबीब से एक और बात सुनी है, अब की बार अब तू मार करके दिखा। दूसरी बात हदीस पाक में है, दूसरी मर्तबा उस आलिम को कत्ल करने की 1000 कोशिश करेगा लेकिन मार नहीं सकेगा। वो आलिम रब्बानी बयान करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की हुई अलामात यही हैं, एक बार कत्ल करके उठाएगा लेकिन दोबारा वो मार नहीं सकेगा। ये फितना फैला होगा दज्जाल का, और ये घूमते फिरते मुल्के शाम पहुंचेगा जहां इमाम मेहदी होंगे। इमाम मेहदी यहूदियों से जंग करते करते और दज्जाल के फितनों से फेस करते करते वहां पर होंगे, मुल्के शाम में, दिमश्क में, दुआ कर रहे होंगे अल्लाह इनके फितनों से बचा। एक असर की नमाज होगी, जब इमाम मेहदी नमाज के लिए जा रहे होंगे, 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखते हुए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उतर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब भी बाहयात हैं आसमानों पर, अल्लाह करीम उनको उतारेगा, वो आएंगे। हजरत इमाम मेहदी फौरन ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान लेंगे और आपका हाथ पकड़ करके वो लाएंगे, और इमामत के लिए जब वो आगे बढ़ाएं तो ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम नमाज नहीं पढ़ाते, इमाम मेहदी से कहते हैं इमाम आप ही होंगे, हाकिम आप ही होंगे, मुंतजिम आप ही होंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम ये बयान फरमाएंगे मैं तो सिर्फ और सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूं। उसके बाद इमाम मेहदी नमाज से फारिग होकर अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे,
پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی باہر نکلیں گے، حدیث پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز پگھلتا چلا جائے گا، قریب نہیں آ پائے گا۔ اب وہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرا دور حدیث پاک میں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ عقیدہ ختم کرو، خنزیر کو ماریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لد پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے، وہاں تک لے کر جائیں گے۔ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے، ختم ہو چکا ہوگا۔ دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے، ملک شام، تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے۔ اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا، لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبیک یا، وہ دن آئے گا، وہ وقت آئے گا۔ صبر کے بعد، ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے، رات کے بعد اجالا آنا ہے۔ ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرے عزیزو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا، امام مہدی کی عمر 49 سال یا 50 سال کے آس پاس ہوگی، وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے۔ آپ کی جنازہ کی نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، وہیں دفن ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوں گی، لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ روضہ مبارکہ، اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے، ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے، لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی، میرے مصطفیٰ کی شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی، اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکہ چلنا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ آپ دفن ہو چکے ہوں گے، قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا۔ ہاں اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی، جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے، لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، یہ دو لوگ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آتی یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے، دو آدمی نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج ہے، اور یہ ابھی موجود ہے، یافس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے، وہ واللہ عالم، لیکن قرآن میں 16ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک لوہے کی پگھلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا ہے، یہ قوم آ نہیں سکتی۔ لیکن قیامت کے قریب
وہ सद्दे सिकंदरी जो बांधी हुई दीवार है वो टूट कर गिर जाएगी, याजूज माजूज पूरे बाहर निकल आएंगे। और जैसे आएंगे वो जिस नदी के किनारे से गुजरेंगे पूरा पानी पी जाएंगे। वो जो दरख्त मिले, जो कुछ भी हो सब खा जाएंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ये वो ज़माना होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी मौजूद होंगे, उनके इंतकाल से पहले ही ये याजूज माजूज आए। एक बैल का सर जो है 100 दीनार में मिल रहा है, 100 सोने के सिक्के, और उसको भी लोग गनीमत समझेंगे। इतनी महंगाई कोई चीज़ ही नहीं मिल रही होगी, सब ये खा कर चट कर चुके होंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ही अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ये अर्ज़ करेंगे, मौला इस जालिम याजूज माजूज से हमें नजात अता कर। अल्लाह तबारक व तआला एक बीमारी उनकी गर्दन में पैदा करेगा, वायरस आएगा उनको, याजूज माजूज को। अब अल्लाह आलम उस वक्त का कौन सा कोरोना होगा, कौन सा है, लेकिन उस वायरस से एक ही दिन में वो पूरी फौज मर जाएगी। और मरने की वजह से पूरी रोए ज़मीन पर इतनी बदबू फैल जाएगी, ताफुन, उठाने वाला कोई नहीं है इनकी लाशें। तो फिर ये भी मिलता है रिवायत में कि अल्लाह ताला लंबी बड़ी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा, वो परिंदे उनकी लाशें उठा उठा करके जंगलों की तरफ चले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा, इतनी तेज़ बारिश बरसेगी कि पूरी ज़मीन पाक हो चुकी होगी। याजूज माजूज का फितना ख़त्म होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा। फिर अचानक एक जानवर बाहर आएगा जिसको दाब्बतुल अर्ज़ कहा गया। ये आएगा, ये आकर के अपने एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा और एक हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये दोनों लेकर के ज़मीन पर घूमता रहेगा। जो मोमिन होगा उसकी पेशानी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से निशान लगा देगा, जो काफिर होगा मूसा अलैहिस्सलाम के असा से उस पर लकीर खींच देगा। जिसके लिए वो निशानी लगा दिया वो उसी हालत में मरेगा। और उसके बाद फिर हदीस पाक में है दाब्बतुल अर्ज़ चला जाएगा। फिर होगा ये कि एक दिन लोग थक करके सोए होंगे, धुआं धुआं नजर आता रहेगा हर जगह धुआं धुआं, लोग परेशान होंगे। और उसके बाद सोएंगे तो रात इतनी लंबी होगी कि लोग उकता जाएंगे, सो कर उठेंगे फिर सोएंगे, सोकर उठेंगे फिर सोएंगे। बच्चे जो है चीख मारते रहेंगे और फिर जानवर अपनी खेतियों की तरफ भागने के लिए बेकरार होंगे। लेकिन रात लंबी होगी, 3 रातों के बराबर एक रात होगी, 3 बड़ी रातों के बराबर एक रात कटती नहीं होगी। लोग थक चुके होंगे सो करके। उसके बाद फिर अचानक छोटी छोटी रोशनी आएगी सूरज की, लोग चीख मारते हुए खुशियों से बाहर आ जाएंगे कि उजाला आ गया। पहले तो लोगों को ये लग रहा था कि अब अंधेरा है, अब सूरज आएगा ही नहीं, लेकिन जैसी रोशनी आने लगेगी सब भाग करके बाहर आएंगे। लेकिन देखेंगे उस वक्त तो सूरज जो है पश्चिम की तरफ से निकल रहा होगा। अभी सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब, ईस्ट से ना, मशरिक से। उस दिन सूरज वेस्ट की तरफ से, मगरिब की तरफ से निकल रहा होगा, पश्चिम की तरफ से। पहले हल्का हल्का निकलेगा सूरज। ये देख करके जो लोग बहुत लंबा सो करके आए होंगे घबरा जाएंगे कि आज क्या हुआ। ये वो दिन होगा कि मेरे आका ने फरमाया तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। उसके बाद फिर किसी का ईमान भी कबूल नहीं, किसी की तौबा भी कबूल नहीं। ये लास्ट दिन है तौबा का। लास्ट दिन का, उससे पहले जो गुजरी रात लास्ट थी। सूरज निकल करके आएगा धीरे धीरे धीरे। उसके बाद दोपहर का वक्त जितना होता है उतने वक्त तक वो आएगा और उसके बाद फिर वापस मगरिब की तरफ ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि पश्चिम से निकल करके पूरब में डूबेगा। आधे तक आएगा दोपहर तक और उसके बाद सूरज फिर अपने मामूल के मुताबिक जैसी रूटीन है वापस फिर पश्चिम की तरफ चला जाएगा, डूब जाएगा। यह आखिरी दिन है। अब किसी का ईमान काम न करेगा, अब किसी की तौबा काम न करेगी। अब मामलात क्या होंगे? धीरे धीरे मोमिनीन का इंतकाल शुरू होगा। तो नए मोमिन नहीं होंगे, मोमिन इंतकाल करते जाएंगे, हुकूमतें फिर से ख़त्म हो जाएंगी। एक रिवायत ये भी मिलती है, जहजा नाम से एक और बुजुर्ग जो हुकूमत करेंगे चंद साल, लेकिन उसके बाद फिर आदिल हुक्मरान नहीं आएंगे।
ख़त्म होते चले जाएंगे। अब मुसलमानों की तादाद जब घटने लगेगी तो फिर बेहयाई बहुत बढ़ जाएगी, इतनी कि खुले आम ज़मीन पर सब कुछ होने लगेगा। नंगापन, जानवरों की तरह लोग जिना करते रहेंगे, सड़कों पर, रोडों पर, रास्तों पर सब खुले आम गुनाह हो रहे होंगे, बेहयाई बढ़ चुकी होगी। यहाँ तक कि हबशियों में से, अब काले लोगों में से एक जमात जाएगी, खाने काबा को भी गिरा देगी। ये वो ज़माना होगा जब मोमिनीन ख़त्म हो चुके होंगे। अब उसके बाद एक ठंडी हवा चलेगी, नरम, उसके मुतालिक फरमाया गया बहुत नरम हवा, मीठी हवा चलेगी और पूरी दुनिया में चलेगी। जो मोमिन होगा वो हवा उनके बगलों से गुजरेगी तो वो उसी वक्त इंतकाल कर जाएंगे। ईमान वाले ख़त्म हो चुके होंगे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रूए ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा। ये एंड लास्ट मोमेंट पर मैं आ रहा हूँ, ख़त्म होने के करीब है। सब मोमिनीन इंतकाल कर चुके होंगे उस हवा के बाद। उसके बाद चंद साल ज़िंदगी गुजरती रहेगी नॉर्मल, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। फिर अचानक एक दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। ये सूर एक बाजे की शक्ल की चीज़ है, धीमी धीमी आवाज़ इसकी बढ़ती जाएगी। अब ये आवाज़ इतनी तेज़ बढ़ेगी कि धमाका होगा पूरी ज़मीन पर, ज़लज़ला आ जाएगा। इतना बड़ा ज़लज़ला आएगा कि कुरान में है, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। तुम उस दिन देखोगे हमल वाली औरतों के पेट से बच्चे बाहर आ जाएंगे। हर आदमी जो दूध पिलाने वाली माँ जो है बच्चे को लेकर बैठी होगी, उस आवाज पर वो बच्चे को उठाकर फेंक देगी। कोई माँ अपने बच्चे को फेंकेगी, लेकिन वो दिन होगा जब माँ अपने बच्चे को फेंक देगी। हामिला औरत, उसका पेट निकल करके बच्चा बाहर आ चुका होगा। लोग जो जो काम कर रहे होंगे वहीं पर सब अपने काम छोड़ चुके होंगे। और उसके बाद फिर इसी सूर की आवाज़ के बढ़ते बढ़ते जब ज़मीन में ज़लज़ले आएंगे, सब खत्म हो चुके होंगे, सबकी मौत होगी। फिर अल्लाह फरमाता है, वतकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, पहाड़ों को धुनी हुई रुई की तरह उड़ाया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, जब तुम देखोगे सूरज को काला कर दिया जाएगा, तारे आपस में टकरा दिए जाएंगे, फाड़ दिए जाएंगे, और समंदरों में आग लगा दी जाएगी। ये सब पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी होगी, खत्म। ये कयामत है। इसके बाद फिर सारे जब फना हो चुके होंगे, अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को भी मौत अता करेगा और रूह निकालने वाले फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत अता करेगा। अब कौन बाकी रहेगा? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर शय फना हो चुकी होगी, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ तुम्हारे रब की होगी। उसके बाद मौला करीम को जब मंजूर होगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा और फिर सूर फूंकने का हुक्म होगा, दोबारा सूर फूंका जाएगा। अब वो जो मंजर है वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है, आलम आखिरत है। जब सूर फूंका जाएगा तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान जिन्नात आए थे सबको उठाया जाएगा। हदीस पाक में है, अब वो दूसरे सूर से, नफ़ख़े सानिया से सबसे पहले जो उठेगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से उठेंगे। हुजूर ने फरमाया, दूसरे सूर के बाद मैं अपनी कब्र से इस तरह उठूंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा। इस शान से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान क़यामत में आएंगे और उसके बाद के जो मनाजिर हैं, हर आदमी को खड़ा कर दिया जाएगा, हर इंसान को मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा। और तुम्हें, चाहे तुमको मिट्टी खा चुकी हो, तुम किसी की ग़िज़ा बन चुके हो, तुमको जला दिया गया हो, तुमको पानी में गर्क कर दिया गया हो, किसी भी हालत में हो, और रब्बे कदीर फरमाता है, जब हमने तुमको लुत्फ़े से पैदा किया पूरा इंसान, तो तुम्हारे जलाकर खाक हो जाने के बाद
तुम्हारी राख से भी वो तुमको दोबारा जिंदा उठाएगा। जब तुम्हें जिंदा उठाया जाएगा फिर ये मैदान होगा, यहाँ पर जो खड़ा करके हिसाब किताब का दिन होगा वो 50,000 साल के बराबर का होगा। अब ये एक लंबी दास्तान है मेरे अजीजों। वहाँ के जो हालात हैं, उस दिन एक आवाज आ रही होगी, जिसको कुरान में अल्लाह ने फरमाया लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह फरमाएगा आज की बादशाहत किसकी है, आज की बादशाहत किसकी है। फिर मौला खुद फरमाता लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक कहर करने वाले खुदा की आज हुकूमत है। जो अकड़ते थे, जो घमंड करते थे, सबको खड़ा किया जा चुका होगा। और फरिश्ते पुकार रहे होंगे ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ हैं गुरूर में चलने वाले, कहाँ हैं अकड़ में रहने वाले, सब जमा हो जाओ। सबके गुनाह उनकी पेशानियों से जाहिर हो रहे होंगे। किसी को दाग करके फरिश्ते निशान बना रहे होंगे कि ये चोर है, ये जानी है, ये शराबी है, ये हराम खोर भी करता रहा। सबकी अलग अलग निशानियां बनाई जा रही होंगी। उस भरे महशर के मैदान में हमारे लिए कौन है मेरे अजीजों। हम उसी रब्बे ज़ुल जलाल को मनाने के लिए आज आए हैं। इस तसव्वुर के साथ अब हम खड़े होकर उसका जिक्र करेंगे कि मौला आज हम तुझे मना रहे हैं, तो हम सबसे सुलह फरमा ले। कल भरी क़यामत के दिन हमें नंगा और ज़लील होने से महफूज फरमा ले। और क़यामत का दिन होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा रब इसी जिक्र की मजलिस की बरकत से हमारी बख्शिश का ऐलान फरमाएगा। वो दिन कितना खूबसूरत होगा अगर आप तसव्वुर करो कि इस जिक्र की मजलिस को अल्लाह ताला जरिया बनाए और क़यामत के दिन जब सब खड़े होंगे लाखों की तादाद में और तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा होगा, फलां का बेटा फलां कहाँ है, तुम गर्दन ऊंची करके देख रहे होंगे क्या है मेरे हिसाब में, क्या है मेरे पल्ले में। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए जन्नत है। खड़े हो जाएं और जिक्र के लिए तैयारी करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।